To determine a line in space, we need two things. One point with direction, one point with direction, and the other is we need 2 points. If we have 2 points in space, suppose we have these 2 points in space, we can determine a unique line. If suppose I give only 1 point, then there will be infinite line passes through the in 1 point that you know from the class 7th and 6th class geometry. अगर एक point लेते हैं space में, there are number of lines passing through the 1 point. So if with 1 point we have direction also, then we can get the unique determined line. So in order to get the equation of line in space, we need 1 point with direction or 2 points. So there are the two formula of straight line, in which you have sometimes you have to determine the equation of line, and sometimes it will be given and to find the others thing. Other things means angle between the line, perpendicular distance, shortest distance, and rest of the things whatever is required according to the syllabus. So first we will determine equation of line in space when 1 point and direction is given. So to determine a line in space, we need first 1 point form direction, and the second is 2 points form. 1 point form with direction and 2 points form. So first we take 1 point form. This is 3D, x-axis, y-axis, and z-axis. Okay. Now what you have to do, like in 11th class, you are finding the equation of line in different standard forms. Similarly, here you have to find the equation of line in different form, but there are only two forms. Last year it was y equal to mx plus c, x upon a plus y upon b equal to 1, x cos alpha, y sin alpha equal to p, and the many other form, 2 points form, 1 point form, symmetric form. So these many forms are not here, only two forms of straight line. So the first condition, this is the equation of line. This is the line, required line. Suppose this is the required line. It is passing through the 1 point x1, y1, z1. And p is the variable point जिसका ये locus है, जिसके चलने से ये बनी है line. As usual आपको कई बार explain करते हैं p point क्या होता है, xyz variable point. ये पॉइंट ए से होकर गया है, ठीक है, और साथ में किसी पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल है. मान ले तो वो वेक्टर ये बी है जिसके ये पैरेलल है, जिसके डी आर एस ए आई बी जे मतलब डी आर एस ए बी सी है, तो उसका कंपोनेंट फॉर्म है वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ए पी वेक्टर एंड बी वेक्टर. हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है कि अगर हमको एक पॉइंट दे रखा है और ये बी के अगर पैरेलल है तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी. व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू द पर्टिकुलर वेक्टर, मींस डायरेक्शन इज गिवन. पैरेलल मींस किसी की डायरेक्शन होगी, वेक्टर के पैरेलल मतलब डायरेक्शन मिल गई कि उस डायरेक्शन में जाओ, उसके साथ चलो, तो डायरेक्शन मिल गई ना. और इस पॉइंट से जाओ तो 1 point विथ डायरेक्शन. फर्स्ट विल स्टडी वेक्टर फॉर्म. दिस इज V is vector form. Now onwards, whenever I am writing VF means this is vector form, means we will study two form, vector form and Cartesian form. So the vector form I can write from this, AP is parallel to B, because this AP is the lines, AP is the required line and it's parallel to B, so AP and B are parallel. I can write it AP equal to TB, definition of parallel vectors. AP we can write using the position vector OP minus OA equal to TB. But OP vector is nothing but position vector of P, will write it by R, and the position vector of A will write by A. Position vector with respect to O. OP means R vector and OA means A vector equal to TB. So R vector equal to A plus TB. R vector equal to A plus TB. This is the required equation of line. This is the required line.
अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो आप बोलेंगे हमें एक पॉइंट ए वेक्टर दे दो और वो किसके पैरेलल है वो दे दो, तो हम लाइन की इक्वेशन आपको इस 3D के अंदर लिख सकते हैं। जैसे उसमें ए मोड सी लिखते थे, y इक्वल टू mx प्लस सी में ए मोड सी, या 2 पॉइंट्स, या 1 पॉइंट विद स्लोप, या 2 इंटरसेप्ट्स, या कॉस अल्फा के लिए अल्फा और पी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस थी ना। ऐसी डिफरेंट कंडीशंस में यहाँ पर ए और बी आपको चाहिए। अगर हम ये पॉइंट ए ओरिजिन पे लेने, इफ ओ ए इक्वल टू ओ ओ वेक्टर, मतलब ए इक्वल टू 0 कर दें, देन आर इक्वल टू टी बी वेक्टर हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होने वाली। मतलब ए पॉइंट कहां से, ओरिजिन पर आ जाए, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन आप लिखते थे लास्ट ईयर वाई इक्वल टू एम एक्स, यहाँ लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल टू टी बी। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस में यहाँ पर आई आता है, या वाई एक्सिस में जे आता है, और या जेड एक्सिस पे के आता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर ये किसके पैरेलल है, अगर हम एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखें, एक्स एक्सिस आर इक्वल टू आई, क्योंकि इसी पे पैरेलल है, आई के पैरेलल है और उस पर कॉन्सेट हो रही है, तो आर इक्वल टू आई आ जाएगा, टी बी लिखते हैं ना अपन यहाँ पे, तो आर इक्वल टू टी आई, ऐसा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू टी जे, एंड जेड एक्सिस क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इक्वल टू टी के। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की इक्वेशन है, टी आई टी जे टी के। क्योंकि ये आई के भी पैरेलल है इसके अंदर, बी वेक्टर मतलब ये किसके, इसके पैरेलल है, बी इसी पर आ गया है, आई वेक्टर के। वेट, please take the screenshot. This is the vector form of straight line and equation of x axis, y axis and z axis. Audible, visible, audible both? Any doubt? Lokesh left, Ayushi Gulati left, blur.
Done screenshot? Okay. So it was the vector form of straight line. It was the vector form of straight line. Okay. This is r equal to a plus tb. A is the point from where the line is crossing, and b is the vector which is parallel to the required line, or required line is parallel to the vector b. Now I will write the Cartesian form. Just listen one important point. Whenever we are finding vector form, we have to write the Cartesian form also. And you will find in the question also that sometimes it is written find vector form as well as Cartesian form as well as vector form. So you have to reduce to one to another. Vector से Cartesian, Cartesian से vector. Sometime exam के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, तो you can use any of the method to get the answer. Don't ask at the later stage, sir उसमें क्या करना है, सर वेक्टर में दिया होगा तो क्या कार्टेशियन में कर लें, कार्टेशियन में दिया है तो वेक्टर में कर लें. इफ कार्टेशियन में गिवन है कार्टेशियन में करो, वेक्टर में गिवन है वेक्टर में कर दो. नहीं आ रहा है तो जिससे आता है उस मेथड से करो, लेकिन उसको सॉल्व जरूर करेंगे. और अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऐसा दोनों से करना है तो फिर तो आपको दोनों मेथड से करना है. ठीक है. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म. अब मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में ले जा रहा हूं. कार्टेशियन फॉर्म CF. कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में आर वेक्टर को हम लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk. पहले वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं मैं. वेक्टर ए को मैं लिखूंगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, एंड बी वेक्टर इज गिवन ai प्लस bj प्लस ck इज गिवन. अगर हम ये सब चीजें जो दे रखी है हमको abc और ab और r, इसमें पुट कर दें, पुट इन r वेक्टर इक्वल टू a प्लस tb, a प्लस tb, a प्लस लैम्डा b, a प्लस mb, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है बुक के अंदर. r वेक्टर इज गिवन. दिस इज द वे हाउ टू कन्वर्ट इन कार्टेशियन फ्रॉम थ्रू वेक्टर, फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन. वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो प्रोसीजर समझा रहा हूं मैं. देखो r वेक्टर की जगह हम क्या लिख देंगे, xi yj zk. a वेक्टर के प्लेस पे लिख देंगे ai प्लस bj प्लस ck, नहीं सॉरी x1i प्लस y1j प्लस z1k. a वेक्टर के प्लेस पे t टाइम्स b वेक्टर कितना है, ai प्लस bj प्लस ck. नाउ ऑफ कोर्स वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ ij के बोथ साइड. सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ I, J, K both side, then you will get here x, and here you will get x1 plus at. Y equal to what is y? Y plus bt, and z equal to c plus z plus ct. Or this simplification we can write here, this is the general points coordinate. देखो p क्या है, xyz क्या है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन जनरल पॉइंट है. तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है जनरल पॉइंट को फाइंड करने में. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, बहुत यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर इधर x1 y1 और z1 आएगा. ठीक है, x1 प्लस at. अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ले आए और a से डिवाइड कर दें तो t की वैल्यू मिलेगी. ऐसे यहां से t की वैल्यू मिल जाएगी और यहां से भी t की वैल्यू मिल जाएगी. x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू t. ओके, ये तीनों चीजें हमें इसमें मिल गई हैं. तीनों किसके इक्वल है, t के इक्वल. दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई है. देखो इसमें जो डिनोमिनेटर में जो एबीसी लिखे हैं वो क्या है, वो इस लाइन के डीआरएस बोल सकते हैं क्योंकि वो रेशो में लिखे हुए हैं.
इस लाइन के डीआरएस क्या है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, कल बताया था मैंने, माइनस कर दो तो ये एपी के डीआरएस है ऊपर, और ये ए आई बी जे सी के किसके डीआरएस हैं, जिसके ये पैरेलल हैं। लाइंस पैरेलल होती हैं तो डीआरएस का रेशियो इक्वल होता है ना, वही चीज लिखी हुई है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 ही लिखा हुआ है, पर इसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड यूज हो रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, इक्वेशन। तो ये देखो स्पेशल टाइप की इक्वेशन है जिसमें दो दो तीन तीन इक्वल टू के साइन लगे हुए, जनरली हम लोग इक्वल टू के साइन एक लिखते हैं ना इक्वेशंस में, लेकिन यहाँ दो दो इक्वल टू के साइन लगे हुए, स्पेशल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्पेस के अंदर इस टाइप की इक्वेशंस बनती हैं। जैसा भी मैंने आपसे बोला, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इसके रिमार्क्स में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, देखो ये कहां से पास हो रही है, 0 0 0 से पास हो रही है, तो ये x1 y1 और z1 क्या है जहां से लाइन पास होती है, देखो माइनस के बाद होना चाहिए, माइनस का साइन जरूरी है, अगर नहीं होगा, जैसे मान लो x प्लस टू लिखा है तो उसको हम x माइनस टू लिख देंगे, x माइनस माइनस टू लिख देंगे, और x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, ये चीजें ध्यान देना इसमें, और डिनोमिनेटर में एबीसी लिखे हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, डीआरएस हो जाएंगे। तो यहां पर जैसे मान लो 2x प्लस थ्री लिखा होता, 2x प्लस थ्री लिखा होता, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन में तो करेंगे ही, तो हम उसको लिखते हैं x माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू, और टू को डिवाइड में ले जाता मैं, मतलब x का कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है। आयुषी गुलाटी के इतनी बार बार कॉल आते रहते हैं, बार बार क्लास लेफ्ट करती है आयुषी गुलाटी, इतने फोन आते हैं क्या बार बार बीच बीच में आपके, दो तीन बार क्लास लेफ्ट कर दिया फिर ज्वाइन कर लिया, मजाक बना रखा है क्या? हम कॉल ही नहीं उठाते, हमारे यहाँ पर आते रहते हैं, हमारे स्कूल से कॉल आता है, अभी से गिरिजा मैम का कॉल आया तो मुझे उठाना पड़ा, बहुत अर्जेंट था क्योंकि पेपर चल रहा है 11th क्लास का, बाकी हमारे से कॉल आते रहते हैं, हम उठाते भी नहीं है, बाद में बात करेंगे, अभी एग्जाम, अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारी इच्छा हो जब तुम क्लास से चले जाओ, जब तुम क्लास से आ जाओ, कॉल उठाने पे होता है ना ऐसा, हर बार नेटवर्क इशू आ रहा है तुम्हारा थोड़ी थोड़ी देर में, अपने आप कोई लेफ्ट नहीं होता है, इतने दिन हो गया पढ़ाते हुए, साल भर हो गया मुझे, अपने आप लेफ्ट हो जाते हैं क्या? अपने आप तो हम आज तक लेफ्ट नहीं हुए यार कभी, मतलब पूरे साल में एक या दो बार चांस आया होगा, और अभी मैंने 3 बार देख लिया गोइंग कमिंग गोइंग कमिंग। ये हर्ष धाकड़ ज्वाइन, आलू का पराठा खा के आए होंगे अभी, टाइम था सर, मजाक बना रखा है तुम लोगों ने यार, कभी भी आ जाओ कभी भी चले जाओ। एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर हमको लिखनी है, देखो इक्वेशन ये ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब x1 y1 और z1 की जगह मैं 0 0 0 लिख दूंगा, और बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो एक्स एक्सिस है ना वो खुद के साथ में जीरो एंगल बनाता है, तो cos 0 1 होते हैं, तो इसके जो डीसीएस है, जो डीआरएस है वो 1 0 0 होते हैं, इसके 0 1 0 होते हैं, और इसके 0 0 1, ये डीआरएस है, इनके डीआरएस डीसीएस दोनों यही होते हैं, डीआरएस डीसीएस किसके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी एक्स अपॉन 1 वाई अपॉन 0 जेड अपॉन 0, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 इक्वल टू जेड, ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें आप देखते हो ना एक्स एक्सिस दो दो प्लेन से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये प्लेन है, कौन सा ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में z इक्वल टू 0 होता है, और एक्स जेड प्लेन में y इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू 0 होता है, इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के इंटरसेक्शन से लाइन बन रही है, देखो एक्स एक्सिस बन रही है ना, तो z इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म ज्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है, इसको अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉर्म, और इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म, इसको भी हम सिमेट्रिकल फॉर्म ही बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म इन कार्टिशियन फॉर्म, कार्टिशियन फॉर्म सिमेट्रिकल फॉर्म। ऐसे बताओ y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगी, x अपॉन 0 y अपॉन 1 z अपॉन 0, मतलब x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन, इसमें जेड वाई प्लेन में x इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y axis, and equation of z axis x upon 0 y upon 0 z upon 1, मतलब
x इक्वल टू 0 इक्वल टू y। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, थोड़ा कंजस्टेड और राइटिंग थोड़ी ढंग की नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको देख लो, ढंग से नोट कर लो, मेरी भावनाएं समझ जाओ। आप यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया क्योंकि मिटाना पड़ता, वापस मिटा देता तो फिर इधर उधर हो जाता, वो एक जगह पर नहीं रहती सारी चीजें, इसलिए ऐसा किया है मैंने। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क हैं इसके, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन, ये वाई एक्सिस की इक्वेशन, ये जेड एक्सिस की इक्वेशन। डीआरएस डीसीएस हमेशा याद रखना है। एक्स एक्सिस के डीसीएस क्या होते हैं? 100, वाई एक्सिस के 010, जेड एक्सिस के 001। क्यों होते हैं ये पहले बता चुका हूं मैं। 3D के अंदर जो अपने उस समय स्टार्ट किया था, उस समय बताया था डीआरएस डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 एंगल बनाएगा तो cos 0 1 होता है, और वाई और जेड एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो cos 90 0 और cos 90 0। इसलिए एक्स एक्सिस के डीसीएस 100 और डीआरएस भी कितने हो जाएंगे? 100, क्योंकि डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा डिवाइड में। तो 100 डीसीएस एंड डीआरएस ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस 010 एंड जेड एक्सिस 001। दो तीन तीन बार बोल दिया है क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ज्यादा यूज होती है तो फिर आपको याद नहीं रहती इजीली। रीजन भी बताया, रटने की बात नहीं करी है, रीजन भी बताया कि क्यों होता है वो ऐसा। तो ये वन पॉइंट फॉर्म की थ्योरी हो गई कि वन पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है। लेकिन अब देखो यहां पर ए बी सी लिखा हुआ था, मतलब डीआरएस थे। अगर डीसीएस होते तो क्या करते? तो वो लिख देता हूं मैं, इफ डीसीएस आर गिवन, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, एंड z माइनस z1 अपॉन एन। ये लाइन होती है। इसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना हो जाता है? 1। और उसमें जब एबीसी लिखते हैं ना तो उनका सम 1 नहीं होता डीआरएस में, इतना डिफरेंस है बस। नाउ 2 पॉइंट फॉर्म। ये 1 पॉइंट फॉर्म का रिमार्क था। टू पॉइंट फॉर्म में आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाए, मान ली दो फैन आपके इस छत पे लगे हुए, अपने इस पे सीलिंग पे लगे हुए सीलिंग फैन, दो उनके दो को ज्वाइन करने वाले एक थ्रेड बांध दो, एक रस्सी बांध दो, तो वो एक लाइन बन जाएगी। अगर आपको स्पेस में 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D के लिए अपने को 2 पॉइंट्स मिल जाए, अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मैंने x1 y1 z1 और x2 y2 z2। पी पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं अपन, एक्स वाई जेड, जिससे इसका एग्जिस्टेंस होगा, इसी का ये लोकस है। तो अपन ऐसा क्या लिख सकते हैं? एपी इज पैरेलल टू ए बी, यहां से एपी और एबी पैरेलल है, कौन साइड है तो पैरेलल भी होती है, कौन साइड लाइन सर पैरेलल, तो एपी और एबी पैरेलल है, ठीक है। एपी और एबी पैरेलल है, तो एपी इक्वल टू टी बी लिख सकते हैं हम इसको। टी बी मतलब टी ए बी, पैरेलल के साइन को हटाकर। और एपी वेक्टर का मतलब अभी बताया मैंने, ओपी माइनस ओ ए, और ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर। इसका पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर ले रहा हूं, इसका पोजिशन वेक्टर में बी वेक्टर ले रहा हूं, इसका पोजिशन वेक्टर में आर ले रहा हूं। मतलब ये ऐसे है, ये आर वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है। तो ओपी को तो हम लिख देंगे आर वेक्टर, इसको हम लिख देंगे ए वेक्टर ओ ए को, टी टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। तो आर वेक्टर इक्वल टू a plus t times b minus a. This is vector form of straight line.
इन 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म स्टार्ट किया ना यार। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म भी बनाऊंगा, पर अभी ये वेक्टर फॉर्म है देखो। तो वेक्टर फॉर्म जो 2 पॉइंट्स फॉर्म है वो कम यूज होता है, लेकिन इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें इसको भी यूज करना पड़ेगा कि 2 पॉइंट्स गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1 पॉइंट में r इक्वल टू a प्लस टी भी आ जाता है बस यहाँ पर। अब देखो बी और ए क्या है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आई जे की टर्म में, वो लिख देंगे। टी ऐसे ही रहेगा, आंसर में टी रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में टी लेमडा म्यू चलते हैं। और ए वो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है, कोई सा भी एक पॉइंट फिक्स कर सकते हैं आप, ए जरूरी नहीं ए ही हो, दोनों में से कोई भी एक फिक्स। सॉरी। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट्स फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट्स वाली स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें हम लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस टी इंटू बी माइनस ए है ना। आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जस्ट एक्सप्लेन, अभी बताया आर को एक्स आई वाई जे जेड के लिखते हैं। ए को क्या लिखेंगे, एक्स वन वाई वन जेड वन है तो कोऑर्डिनेट्स एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। आई जे के का मल्टीप्लाई करना कैसे होता है ये सब बहुत पहले समझा दिया है मैंने, कंपोनेंट्स की थ्योरी बोली थी इस दिन, बोला था। अब वेक्टर हमारा एलजेब्रा से कोरिलेट हो रहा है। टी टाइम्स बी वेक्टर एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के माइनस एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ओके, तो ये x इक्वल टू, कंपेयर करो, कंपेयरिंग डायरेक्ट, x इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस टी टाइम्स x2 माइनस x1। दिस इंप्लाइज t इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो t की वैल्यू ये मिल रही है। सिमिलरली t इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड t इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। line is, sorry, line is x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। ये 2 पॉइंट फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट्स फॉर्म। देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखे हुए हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, 2 पॉइंट्स फॉर्म के डीआरएस यही तो होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये डिनोमिनेटर में। x माइनस x1 भी डीआरएस है, ये देखो x माइनस x1 y, मतलब ये दोनों डीआरएस एक ही लाइन के, तो वो रेशो में आएंगे ना, एक ही लाइन के डीआरएस अलग अलग वे में लिख रहे हैं, एक x माइनस x1 से लिख रहे हो, एक x2 माइनस x1 से लिख रहे हो, तो उनका रेशो इक्वल आएगा, बिकॉज कोलिनियर लाइन कोलिनियर पॉइंट से बनी हुई है, 2 पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट से ले रखे हैं अपन ने। तो ये इस टाइप का जो फॉर्म लिखा जाता है ना, उसको हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलते हैं। ये 2 पॉइंट्स फॉर्म है, इससे पहले 1 पॉइंट फॉर्म बताया मैंने आपको। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को डिटरमाइन करने की थ्योरी थी कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिटरमाइन करना, तो आप बोलोगे ठीक है सर, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए ना, तो आप बोलोगे 3D में चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे क्या करो, एक पॉइंट दे दो विथ पोजीशन वेक्टर और किसके पैरेलल है वो दे दो। बोले मैं तो ये नहीं दे रहा, तो फिर बोले सर 2 पॉइंट्स दे दो, मैं वो भी नहीं दे रहा, तो कहना सॉरी सर नहीं कर सकते। कहां से करेंगे फिर हम, जब आप 2 पॉइंट्स भी नहीं दे रहे हो और एक पॉइंट और डायरेक्शन भी नहीं दे रहे हो और बोल रहे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिटरमाइन कर दो स्पेस में, तो ऐसा थोड़ी होता है। फिर यूनिक लाइन नहीं डिटरमाइन करके देंगे, हम कुछ भी लिख देंगे। अंकित आकड़ को बुरा लग गया क्या, लेफ्ट मैसेज आ गया क्या, कॉल आ गया किसी का। नाइन्टी परसेंट चांसेस मुझे लगता है कि जब ये डिस्कनेक्ट होता है, कब,
जब आपका कॉल आता है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दो। 95% चांसेस तभी होते हैं जब कॉल आता है, क्योंकि मेरा फोन जब भी डिस्कनेक्ट हुआ है ना अभी तक, शुरुआत से राइट फ्रॉम 3 अप्रैल से मैं पढ़ा रहा हूं, नेटवर्क इशू भी होता है ना, नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ यार आज तक, अपने आप लेफ्ट हो जाते हैं। मेरे साथ तो अभी तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये 3 अप्रैल से लेकर शायद ही 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा, 1 या 2 बार पर। ब्लर होता है वो मानता हूं मैं। हाँ, बीच में दूसरे ऐप चलाने से दूसरी चीजें बीच में चल रही है, खूब सारे ऐप्स ऑन कर रखे हैं, बीच में कॉल आ रहे हैं, कॉल आने पे अगर आप उसको उठाओगे तभी डिस्कनेक्ट होगा, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। हो सकता है, देखो टेक्नोलॉजी में मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, हो सकता है आजकल के बच्चे हो आप, आपको ज्यादा मालूम हो, तो मैं कभी जो गुस्सा कर रहा हूँ मेरा गुस्सा गलत भी हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर देट। लेकिन मैं जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, मैं मेरी बात सुनो आप, कि पिछले 3 अप्रैल से लेकर आज 3 फरवरी, 2 फरवरी हो गई है, दो मतलब करीब 10 महीने हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 1 या 2 बार ऐसा कभी हुआ होगा कि मैं अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता, तो शुरुआत से नहीं चल रहा है, बीच बीच में वैसे फोन आते मैं उठाता ही नहीं हूँ। फोन सिर्फ मैंने बना रखा है यहाँ पे स्कूल के टीचर्स का, क्योंकि मुझे पता है स्कूल का टीचर मतलब बहुत अर्जेंट काम है कोई, फ्रेंड्स का नहीं उठाना है, पेरेंट्स का नहीं उठाना, बाद में बात करूंगा, क्योंकि आपको तो कुछ भी काम हो सकता है, कभी भी बहुत अर्जेंट काम नहीं हो सकता। एग्जाम चल रही है उन दिनों में, किसी टीचर का जैसे भी एग्जाम स्टार्ट हो गई आज से, है ना, आपको पता है एग्जाम स्टार्ट हो गई, तो किसी टीचर का फोन आ गया, स्कूल से फोन आ गया, तो कोई अर्जेंट काम आया तो उठाता हूँ मैं फोन। बाकी मैं रिलेटिव्स ये किसी का फोन नहीं उठाता हूँ, बाद में बात करूंगा, अभी नहीं करूँ। और तुम उसी समय फोन उठा ले तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये भी हो सकती है, पर उससे लॉस आपका ही हो रहा है फाइनली। मैं तो सब चीज पढ़ा रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरे टाइम की रिकॉर्डिंग शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी पढ़ा है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता काउंसलर ने कोई चीज स्किप करी है, सब चीजें पढ़ाई और एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ हर तरीके की चीज, और जो सिलेबस में नहीं है वो भी चीजें पढ़ा दी कि भाई आगे यूज हो रही है, पढ़ो इसको, जैसे कल ही आपको मैंने फॉर्मूला लिखा है। प्लीज नोट इट। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। मतलब आपको दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बताएंगे कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइंस दे रखी हैं आपको, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लुक हियर, कैसे करते हैं। अब आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और जनरली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 पॉइंट फॉर्म में ही दी जाती है, ऐसे लिखा जाता है, और दो लाइन होगी तो मैं लेमडा और म्यू यूज करूंगा, ये ध्यान रखना। ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखूंगा, देखो मैंने कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों ही लिखे हैं, क्योंकि दोनों थ्योरी साथ पढ़नी है, अभी बोल चुका हूं मैं, वीएफ सीएफ दोनों पढ़ना है। अब ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पी कॉमन है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है या एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कार्टेशियन के लिए, आर वेक्टर के लिए। ये किसके पैरेलल है, बी1 के पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है, बी2 के पैरेलल। अभी जो थ्योरी बताई उससे ये कहां से पास हो रही है, पहली वाली लाइन A1 से, ये कहां से पास हो रही है, दूसरी वाली लाइन A2 से। इसका पोजीशन वेक्टर हमने A1 लिया है,
इसका पोजीशन वेक्टर हमने A2 लिया। जो थ्योरी अभी जस्ट पढ़ी है 1 पॉइंट फॉर्म, वो सब चीजें इसमें बताई है मैंने। देखो कोऑर्डिनेट्स बस मैंने यहाँ x1 y1 z1 वो भी लिख देता हूँ। ये x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। जितनी भी चीजें यहाँ दिख रही हैं वो सब इसमें दिखा दी है मैंने यहाँ पे फिगर के अंदर। अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो पिछले साल तक भी आप 9-10 तक भी जो नॉलेज है आपके पास कि दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, जब उनका एक पॉइंट कॉमन हो, मतलब एक्स वाई दोनों में एक जैसे हो। आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 2 वेरिएबल की 10th क्लास में सॉल्व करते थे, ग्राफ बनाते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते थे, एक्स और वाई कॉमन होता था ना दोनों में, तो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका पोजीशन वेक्टर सेम होगा, थ्योरी ये बोलेगी 12th क्लास में वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या बोलेंगे, उनके एक्स वाई जेड एक जैसे होंगे। अब एक्स वाई जेड एक जैसे होंगे मतलब जनरल पॉइंट्स दोनों का एक ही जगह आके मिलेगा। और जनरल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट अभी बताया ऊपर, x इक्वल टू x1 प्लस 80, y इक्वल टू y1 प्लस bt, z इक्वल टू z1 प्लस ct, बताया ना। तो वही चीज मैं इसमें यूज करने वाला हूं। तो हम क्या करते हैं, लेट दिस टू लाइन इंटरसेक्ट एट p, देयरफॉर दे विल हैव सेम पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट 1 and 2 intersect at p। अपन पहले वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म let 1 and 2 intersect at p, therefore OP of 1 equal to OP of 2। इक्वेशन 1 का OP और इक्वेशन नंबर 2 का OP इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज A1 प्लस लेमडा B1 इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। मतलब दोनों के आर आर इक्वल, ओपी ओपी इक्वेट कर दिया। मतलब A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 इक्वल टू कंपेयर आईजे के कोफिशिएंट्स। दोनों तरफ आईजे की टर्म की भरमार होगी, खूब सारे आईजे के कोफिशिएंट्स मिलेंगे। कंपेयर आईजे के कोफिशिएंट्स एंड गेट 3 इक्वेशंस इन लैम्डा म्यू। सॉल्व, ये पहली स्टेप, ये तो पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में हम ये करेंगे, तीसरी स्टेप में सॉल्व 2 इक्वेशंस इन लैम्डा म्यू एंड गेट लैम्डा म्यू। दो कोई भी दो को सॉल्व कर लो, लैम्डा म्यू मिल जाएगा। पुट लैम्डा म्यू इन थर्ड इक्वेशन, लैम्डा म्यू की जो थर्ड इक्वेशन है उसमें इफ सेटिस्फाइड, देन लाइंस इंटरसेक्ट। अब कैसे तो ये क्वेश्चन करके तो मैं बताऊंगा, ये आपका भी थ्योरी लिखी है मैंने, इसमें क्या करना है। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, लीव मीटिंग।